मैंने गलती से ना very good पिछले टाइम afternoon लेटर to दबा दिया. all our members, and hopefully this is this thing, an invitation from nature to spruce up your gardens once again, because 2 दिन से अच्छी बारिश हो गई है, so everything looks very fresh and green. So it augurs well for our summer competition also, and I request all our members to again please make an effort. It is not, the participation is not only for winning, but for sharing views, apne khud ke ideas, and taking in from others also. And that is why this morning I posted a few pictures from my garden and from Mrs. Gambhir's also. Both have green gardens, but then they look fresh and nice. So the beauty of nature is reflected not only by colors, but also by the variety of greens that we have, and how we are able to maintain the cooling of temperatures even in this heat. So that's a little request, because tomorrow is the last date. Members, please do give in your entries for that. And coming on to welcoming Shama ji, of course. ये तो हमारी एक main speaker है आजकल, who's an all-rounder and she can talk on all topics. No. So No. Shama ji, before I hand over to you for chrysanthemum के बारे में आप सारा बताएंगी, we had a little discussion in the executive meeting that we held about 15-20 days back, and it was regarding the revival of the chrysanthemum show, like Shama ji had mentioned. So although we have been discussing it since the last many years, but वो धीरे धीरे dwindle होते होते, there's no show, chrysanthemum show held even in Delhi now. So उसका revival करने का idea जो है Shama ji का is really good, and because 2 years back DLF Mall of India had offered that we should host, वो अपने promotion के लिए कर रहे थे, that we should have a flower show over there, but उनका premises of course हमारे annual flower show के लिए बहुत छोटा पड़ता है, and there's too much of a crowd over there, so we had refused. But now that Shama ji ने mention किया chrysanthemum show, तो दीपा और मैं अभी परसों गए थे उनके पास में, and we decided to have it over there, because this time the chrysanthemum show is not going to be a chrysanthemum show as such, but more of a display and exhibition of chrysanthemums, wherein we can request some of the growers who are still into it to bring their pots, and people like Shama ji, Lakshmi Nath ji, and वो लोग अपना exotic varieties भी ले आएंगे. So talking about DLF Mall of India, we spoke to them regarding the East Gate. I think all Noida people know about it. जो Radisson के side से entry होती है, gate number 7 is the East Gate, and वो लोग अपना the East Gate. I think all Noida people. Yes, East Gate. So right side में घुसते से ही जो उनका पूरा lawn है, वहाँ पे वो PK Singh ji, who is the main horticulturist over there, displays his plants. अभी भी बहुत अच्छे बोगनविलिया और कोचिया लगे हुए हैं वहाँ पर. So that was the area that they said is fine with them, because they would not want any interference with the general public. Now what we are thinking of is holding the show for 2 days over the weekend. Of course, कल लक्ष्मी नाथ जी से भी जब बात हुई, तो weather पे depending, it will be either November last week, which is the 26th and 27th of November, or the first week of December, which is 3rd and 4th of December. That is the first week of December. So this will be decided later, but I want all our members to know कि हम वहाँ पे एक special amateurs display भी रखेंगे by FSN members, wherein you can get 2 pots each or 3 pots each. इस तरह से we are going to chalk out a small kind of a schedule also, which is going to be very easy. And आज की talk के बाद, of course, all of us are going to feel like experts, on chrysanthemums, and we are going to try and take Shamaji's help and do the best we can with chrysanthemums. So that should be a very good incentive, for all of us to begin the show. And from next year, जैसे बढ़ता जाएगा, we can of course do it in the stadium or Sector 8 nursery. But abhi, for the first time, I think we need Mall of India's support also to make the show a success, in the sense that more and more people get to know about it, because it's going to be on a weekend. September, when we talk of November and December, they are the months where pleasant mausam hota hai, so everybody would like to go
to the malls, and they will also do a lot of advertisement regarding the show. So please do give in your views on FSN sharing after today's meeting. Shama ji, not taking more of your time, please अब आप start करिए so that our members get a little idea also, you know, कि वो कैसे कम से कम 2 या 4 pots ला सकते हैं अपने. Sure. Over to you. No, it's not that, it's not rocket science as I would say, but yes, it is still a little laborious than other flowers, because other flowers have a short span. You sow the seeds and plant the seedlings, and by February again you'll have all the, you know, flowers and everything. But जितना काम उसमें होता है उससे थोड़ा 1/3 ज्यादा होगा इसमें. But अब जब हमारा आधा साल निकल भी गया है, we can still try, and now we've just got 4-5 months of a little bit of hard work to work on our chrysanthemums. So it shouldn't be tough. It is easy. Now chrysanthemum, as we know it, it's a combination of Chrysanthemum hortorum and Chrysanthemum indicum. So there are 2 varieties which are, you know, been hybridized, or what should I say, have been combined together to produce the chrysanthemum that we see nowadays. And as you can see, all of them, their color, their formation, the arrangement of the petals, they all vary widely. And some of the chrysanthemums that we know, they are even fragrant. Now, in chrysanthemums, there are 2 basic varieties that, especially in you know, growing them, we should say there are 2 specific families. So one is your large flowering variety, where you have the big ball variety or the big spider variety, you know. So that is your large flowering. Then the second one is your small flowering. Now, more or less, small flowering is always grown more like a bush. So this is the bush varieties that we keep talking about. Quickly, I'm going to, Vivek, can you give me screen sharing, please? I think I can share now. Yeah. Okay. So now let me just quickly tell you. Now this is the incurved variety. Here you can see all the petals are going upwards, away from the stem and going upwards. This is always called a... it's not coming on the screen. Okay. Now? Yes. Okay. So this is your incurved variety. This incurved variety, you can see the petals are all going upwards and they go away from the stem. So नीचे जो stem है आपकी उससे ऊपर चले जाते हैं and they form a ball. Okay, so this is your incurved varieties, and in your incurved varieties you have some few special names like snowball, sonar bangla, mountaineer, and mountaineer chandrama. These are some of the very nice ones. Autumn king. So they all fall under the incurved varieties. Now, if you just want to specialize a little bit, because now you know how to grow chrysanthemums basically, but now you want to go a step further, then you should also know their names. Instead of just saying एक पीला variety दे दीजिए, एक सफेद variety दे दीजिए, तो थोड़ा सा और हम लोग आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में. Then this is the incurving variety. I hope you can all see it. Yes. Yeah. So this incurving varieties, you can see some of the little sepals, they are coming down. They are like wisps. जैसे आजकल स्टाइल भी है ना, आप अपने बाल बनाते हो बस 2-4 आपकी वो निकलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही है ये. और ये इनकविंग में आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज दिखाई देंगे, और इनकी वैरायटीज के अलावा इसकी साइज भी खूब अच्छी बड़ी होती है. तो जैसे कैसा ग्रैंडी है, बोलो दे ओरो, दिस इज द पिक्चर इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ अ बोलो दे ओरो.
It is a lemonish color like this, and it's a nice round ball with a few wisps coming down. Then you have Coca Yamata, then you have Pink Cloud. So these are some of the other varieties. Then we have the reflex variety. This reflex variety is the opposite of the ball, of the incurved rather, not the incurving, incurved, where now all the petals are going downwards towards the stem, and this also forms a ball. In reflex, you have a lot of varieties. One minute. You have very nice varieties. Very often when we, the Chrysanthemum Society of India, when we used to do the flower shows, very often we had a reflex as the king of the show, declared as the king of the show. So इसमें Beatrice May है, white creamish color का. Nancy Ferno, she's one of the most beautiful varieties of reflexes. We've got the other variety coming up. It's more that spider variety rather than reflex. But I just showed you the reflex, na? Okay. So I've just moved forward. Picture has moved forward. नाम बता रहे थे ना reflex के साथ में? हाँ. तो reflex के साथ है आपके Beatrice May, Nancy Ferno, Peter May, then Phil Houghton. One of the nicest. It's a beautiful color in the sense that it is a peachish color. And Evening Star. Evening Star is more, I should say, decorative, because we use Evening Star more for making, you know, Sensin Sukri, which we call the pot having 100 blooms. So with Evening Star, the advantage is that when you make it into 100 blooms, it doesn't reduce too much in size. So that's the nice thing. So now this is the spider variety. Spider में आपके ये है, Tokyo है, then Christmas Crystal है, Frosty Whiskers है, and ये आपका spider variety है. This is more or less Tokyo, and you have many more varieties. I'll show you some of my own which I have grown. Like for instance, this one. Look at this. This is Frosty Whiskers. So spider again is one of the best, you know, it's the most unusual varieties of chrysanthemums. So then you also have another variety which is called quill. अब quill में और spider में ये फर्क है कि quill जो है आपका, इसमें आपकी ये rayonets जो हैं वो सीधी सीधी हैं, and they have a little bit of a darker color showing inside. So these are quills. इसमें महात्मा गांधी है, कस्तूरबा गांधी है. There are some of them again beautiful varieties. इसमें और स्पाइडर में ये अंतर है कि स्पाइडर जो है ना वो एज पे जाके कर्ल हो जाता है, while ये सीधा रहता है. So ये quill variety है. Then you also have another variety which is spoon variety, और I hope I have a good picture. दिख नहीं रहा मेरे पास. Maybe I haven't got. हाँ है. Yeah, you can see here. थोड़ा सा बड़ा कर दे तो इनके और ज्यादा थोड़ा, it looks like a spoon at the end of it, called party time. So these are some of the varieties in the large flowering. अब quill में और spider. Sorry. We'll keep all the questions to the end. So these are your large flowering varieties. Now I will talk about the large flowering first, then I will come to the small flowering. Now let's talk of the cultural techniques of growing these. Now if you have your own plants, like we all are growing it year after year after year. So हम क्या करते हैं, जैसे ही दिसंबर में फ्लावर खत्म होना सा लगता है तो हम उसको we keep it aside variety wise. एकदम से उसको टैग कर देते हैं, उसका वैरायटी लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं. फिर इसको
we see that by January you will start seeing कि नीचे से इसके suckers निकलते हैं. That means stem की जो edge है वहां से नीचे से offshoot से निकलते हैं. वो जो offshoots है हम उसको मतलब feed करते हैं अच्छी तरह से, और feed करके we try to induce lot more of these suckers. Now ये suckers it is not necessary कि हर एक variety में बहुत अच्छे निकलेंगे, नहीं. Some varieties में while the flower is still in full bloom only suckers निकलने शुरू हो जाते हैं. बल्कि हम लोग अगर flower shows में ले आते हैं तो हमारे suckers चोरी हो जाते हैं, because people can see कि ये flower है तो माली लोग नीचे से उसको तोड़ ताड़ के ले जाते हैं. But कई varieties are very stubborn और वो बहुत देर में देते हैं आपको. उसके लिए आपको यही करना है, जैसे ऊपर का फूल खत्म हो गया तो आप 9 इंची उसकी डंडी छोड़ के ऊपर से काट दीजिए, और फिर उसको अच्छे से सनी एरिया में रख के और उसको आप फीड कर दीजिए. फीडिंग से मेरा मतलब है नीम खली, बोन मील ड्राई भी दे सकते हैं आप, या फिर आप दे दो लिक्विड मेन्योर. लिक्विड मेन्योर यू ऑल नो हाउ टू मेक इसके नीम खली और बोन मील का. तो वो आप उसको वीकली डोज में आप देते रहोगे तो एकदम से आपके शूट्स निकलने शुरू होते हैं. डॉक्टर खेर जो NBRI लखनऊ के थे, उन्होंने हम लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास गोबर की खाद का एक पाइल पड़ा है तो आप अपने गमले को उसी में ठूस दीजिए, तो वो उसकी गर्माहट से सकर्स निकलने लगते हैं वो गोबर की खाद के से. तो दैट्स ऑल्सो वन तरीका ऑफ, और यू कैन पुट a layer of गोबर की खाद under your pots and put your pots on top of it. तो वो नीचे के होल से हीट सिस्टम फॉर्म होके वो आपको खूब सारे सकर्स देंगे. अब ये सकर्स आपके आ गए. सो समटाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी और इन द बिगिनिंग ऑफ फरवरी आप वो गमला लेंगे और उसको आप पूरा खोल दीजिए, मतलब ओवरटर्न कर दीजिए, मिट्टी निकाल दीजिए और मदर प्लांट को निकाल लें. मदर प्लांट को जब आप निकालेंगे तो जड़ें आपको दिखेंगी, पूरी नेटवर्क ऑफ जड़ें होंगी, और साथ के साथ ये सकर्स ऑफशूट्स खूब सारे. तो अब इन ऑफशूट्स को आप आराम से एक शार्प सिजर्स के साथ काट के, ईच ऑफशूट मस्ट हैव सम रूट सिस्टम अंडर इट. तो उनको लेके अब ये ऑफशूट्स को अब आप एक ही वैरायटी के हों तो 10 इंची के गमले में 4-5 लगा सकते हैं ये ऑफशूट्स, अलग अलग से इनके, बट एक ही वैरायटी का होना चाहिए. अगर अलग अलग करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू वोंट नो व्हिच वन इज व्हाट. सो एक ही वैरायटी का और नेम करके उस ऑफशूट्स को गमलों में रख दीजिए, एंड अगेन लेट देम डेवलप. वंस दे डेवलप देन you have to keep pinching them. जैसे लंबा सा एक शूट आपका गया तो वो लंबे से शूट को ऊपर से आप पिंच कर दीजिए. सॉफ्ट पिंचिंग. सॉफ्ट पिंचिंग मतलब 2 पत्ते निकालने, तो बस ऊपर के 2 पत्ते आपने निकाल दिए और फिर आप, I'll just show you. ये मेरा गमला है और इसमें अब आप देखोगे, is it visible? Yes, yes. ये दिख रहा है ना? Clear. Somehow I don't seem to be spotlighted. Is it? Am I spotlighted? नहीं, ठीक लग रहा है. आपको तो फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ. We have So spotlighted. हाँ. So this is one of the suckers that I had put in the month of February, and ये large flowering का ही sucker है. और अब आप देखोगे इसको हम पिंच करते रहे हैं तो अब इसमें कितने सारे ब्रांचेस हैं, पूरा एक छोटा सा झाड़ी सा ही बन गया है. और इस वाले को अगर आप देखोगे नाइसली तो ये अलग से अनदर ऑफशूट जैसे ये निकला है. तो ये इस मौसम में अभी आपके पास इसकी ये कंडीशन होनी चाहिए. तो ये इतने सारे आपके पास जब हो गए हैं तो इसको आप इन बिटवीन, जैसे आपने 4-5 लगाए एक छोटे वाले 10 इंची के गमले में, फिर आप देखोगे कि बहुत सारे हो रहे हैं. सो इन द मंथ ऑफ, ये आपका काम चल रहा है फरवरी में, तो आप देखोगे 6 वीक्स लेटर ये खूब अच्छी झाड़ी बन रही है. अब 4-5 है,
So then slowly आप in the month of March इनको निकाल के फिर इनको अगेन एक 4 इंची के गमले 6 इंची के गमले में लगा दो। जो 4 इंची के लिए अब ये बड़ा हो गया, तो 6 इंची के गमले में अलग 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 करके जो 4-5 आपने लगाए थे, अब नाउ ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्लेस। नाउ ये जब ग्रो हो रहा है तो फिर आप मार्च में ही अगर आप पिंचिंग कर रहे हैं तो वो पिंच किया हुआ थोड़ा और ज्यादा पिंच करके उसकी कटिंग बिठा दीजिए। आई एम गोइंग टू टेल यू द प्रोसेस of how to put the cutting, but I'm just trying to explain to you that once the sucker has lot of branches, even in the month of March, which is very good time, end of February to 15th of March tak, you can from that sucker only take out the cuttings and start rooting them. Once they will take about 21 days to root, so that will come to end of March. तो एंड ऑफ मार्च में अब आपके पास रूटेड कटिंग्स ऑलरेडी हो गए हैं। इनको अब आप 6 इंची गमले में रूटेड कटिंग्स को 6 इंची गमले में भी लगा लीजिए, और ये सकर्स भी आपके चल रही हैं, और वो रूटेड कटिंग्स आर बेटर बिकॉज दोज सकर्स जो हम यूज कर रहे हैं उनको फिर हम जुलाई में जाके जो इस टाइम में हम उसकी कटिंग्स ही लेंगे। तो जो आपकी ये रूटेड कटिंग्स चल रही हैं इनकी फिर से हम कटिंग लेंगे इस मौसम में। सो दोनों साइड बाय साइड चल रही है, एक तो आपकी सकर वाली चल रही है और एक आपकी कटिंग वाली चल रही है। बट वी हैव ऑलवेज फाउंड जो कटिंग वाली जो है, फिर उसमें से हम जब कटिंग निकालते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट बनता है और वो ड्वार्फ हाइट पे ही आपको बड फेंक देता है, बिकॉज वी हैव रिड्यूस्ड इट्स ग्रोइंग पीरियड ना, we have already reduced its growing period because हमने transplant किया उसको फिर से। So right now what situation you will see is that no sorry let me continue. So in the month of March आप ने cuttings लगा दी, rooted cuttings आपकी end of March में rooted cuttings को आपने फिर से 6 इंची के गमले में रखे। फिर आप एक दफे अर्ली मई या late April, depending on the growth of your plant, you will once again transfer it to a 8 इंची का गमला। Why do we have to keep doing this? In chrysanthemums अगर आप इस तरह से उसकी रूट को डिस्टर्ब करके और उसे चेंज करते रहोगे और शुरू से ही आप उसको थोड़ा माइल्ड फीडिंग देके फिर आप उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर फीडिंग दोगे, फिर उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर फीडिंग दो, वो देने पे आपका प्लांट जो है ना उस मतलब उसकी उम्र ऐसी होती है, जब वो छोटा होता है तो वो हल्का मेटाबोलाइज कर सकता है, तो वो उतने में वो खुश रहता है। दूसरी बात क्या होता है, जब आप लेस मेन्योर और ये सब दे रहे हैं तो आपका एक्सेस पानी का भी रिटेंशन नहीं होगा। बच्चा छोटा है तो उसको एक्सेस पानी नहीं चाहिए। ये गुलदावरी की जो खासियत ये है कि उसे धूप खूब अच्छी कस के धूप चाहिए, आप धूप से मत कतराइए। This is one plant which loves the sun, which in fact if you give it full sun then it remains compact. ये अगर आप इसको देखोगे ये थोड़ा लगी है मेरा, you know, ये आपको दिख रहा है, हर एक नोड से नोड में अंतर काफी लंबा है। तो दिस इज बिकॉज ये थोड़ा सेमी शेड कंडीशन में था। यही अगर हम और धूप कस के धूप में रखेंगे तो ये और कॉम्पैक्ट ग्रोथ हो जाती है और ऊपर से ये लंबा नहीं भागता। तो गुलदावरी को कस के धूप चाहिए, ठीक है। जब आपको लगा टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर जा रहा है तब आप थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन दे देंगे और उसको आप ऊपर से नेटिंग दे दीजिए 12 से 4। 12 तक आप अच्छे से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धूप देते। दूसरी बात इसकी खासियत क्या है कि इसे वाटर लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। सो पानी जब भी आप देंगे आप नोट करो कि आपके मिट्टी से वो एकदम ड्रेन हो जाना चाहिए पानी। 30 seconds to 50 seconds is the maximum that pani should be standing on it. So therefore if you in a small plant में अगर आप बहुत सारा खाद, पत्ती की खाद और ये वो वर्मी कंपोस्ट सब डाल के
अगर आप पानी दोगे तो वो सब पानी रिटेन करेगा। और ये छोटा सा प्लांट है, इसकी रूट सिस्टम अभी बहुत धीमे धीमे चल रही है, हल्का रूट सिस्टम है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पानी को, नहीं तो ट्रांसपिरेशन करंट के थ्रू वो पानी को लेके वो एक्सपेल भी कर देता है, तो फिर इसमें से पानी कंज्यूम हो जाता है। बट when the root system is so mild, it's so small, it will not be able to reuse all that water. In the meantime, you will come again and water it. So that excess water around the root system will rot the root system because there is no air around it. So if you have expelled all the air out and placed water in its place, so the roots will suffocate and they'll die. So therefore, we'll always keep a kind of soil which will drain well. ठीक है ना? So now again, when you have changed it in the month of May, again आपको लगेगा ये भगवान, मई में she is making us repot our plants. मई में तो temperature 40-42 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से इसको रिपॉट किया जा सकता है अगेन इनटू 10 इंची की पॉट, और उसमें आप छोड़ सकते हो इसको, और ओवरहेड आप नेटिंग दे सकते हो, कुछ नहीं होगा आपके प्लांट को, धूप बर्दाश्त हो जाता है। और पानी की जो पूरे टेक्निक है वो मैं आपको बताती रहूंगी। अब आपने इसको फिर से ट्रांसप्लांट कर दिया मई में, अब ये ग्रो कर रहा है इन द मंथ ऑफ मे, and in my case it's in a 8 inchi ka pot, it's not in a 10 inchi ka pot, so it's quite, I have not transferred it after 8 inchi because it was still, you know, quite doing quite well in the 8 inchi ka pot. Now at the end of June, when you can see moisture in the air, it's there, and you feel that by July first week monsoon should be arriving, then only then you have to take all these factors into account. ये मत करिए कि मैम ने जुलाई बोला तो जुलाई करना है, या जून एंड बोला तो जून एंड में ही करना है। थोड़े से फैक्टर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आगे का फोरकास्ट ये है, अगले सैटरडे से फिर से टेम्परेचर 41 डिग्रीज पे जाने वाला है, तो वो 41-42 पे जाएगा ना, तो उस टाइम पे प्लांट जो है वो अपने आप को बचाव करता है, वो अपने आप को किसी भी तरह वो पानी लेके अपने आप को ठंडा कर लेता है। हम एयर कंडीशनर में बैठते हैं तो ये प्लांट जो है वो पानी के द्वारा अपने आप को एयर कंडीशन करता है। सो इट विल नॉट थ्रो रूट्स। If we try to do it when the temperature is 41-42, it will not throw out roots because it's conserving its energy. So therefore, root system means you're laying out the foundation for starting your factory of absorbing nutrients, taking it to the furthest point of your plant, and then throwing out the excess moisture, then once again picking up nutrients along with the moisture, water, and then once again this. So, and what are you doing with this moisture? You are, with the help of chlorophyll, making the food for the plant, which is again throwing out more and more leaves. Solar panels, as we call them, because these solar panels are the ones with the help of the sunlight who make chlorophyll and make the food. So therefore, if you are going, if there is no network, only there is no foundation, factory कहाँ से चलेगी? So उस टाइम पे आप कटिंग ना लगाएं तो बेटर होगा। अब now I just want to show you कि अब हम कटिंग कैसे लगाएंगे। Is this you can see this is a tasla, and this tasla is filled with jamna, balu rate, and this balu rate has been sterilized. So first we took it and we put it in the sun. So preparation was done right from the time when the temperatures were high. अभी फिर आगे का वीक फिर से ड्राई होने वाला है, तो आप अभी भी जल्दी से अपना बालू रेत खरीद के उसे धो के अच्छी तरह से एक कोई पुराने जो आपके तकिया गिलाफ होता है उसमें डाल दीजिए और पानी में डाल के खंगार के उसको बिल्कुल धो लीजिए। उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो मिट्टी के थोड़े से भी कोई कण हो या कुछ हो वो सब धुल जाते हैं। उसके बाद फिर आप इसको लेके धूप में अखबार पे बिछा के
कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन इसको कड़क अच्छी, मतलब खूब अच्छी धूप दे दीजिए। तो पत्थर के ऊपर आप रखोगे तो नीचे की तपन भी होगी और ऊपर की तपन भी होगी, लाइक अ oven. This will get totally solarized. You have no time to do that, then just take an old kadai of yours. Always keep a kadai for your gardening, please. जो पुराना वाला कोई फेंकने वाला है उससे ले लो और वो अपने लिए रख लो। तो वो कढ़ाई में रख के इसको आप 20 मिनट थोड़ा फ्राई कर लो और फिर इसको रख लो। ये स्टेरिलाइज्ड रेता है। अगर आपने स्टेरिलाइज नहीं किया तो वो बेचारे बच्चे को आप बिल्कुल ही बैक्टीरिया फील्ड एरिया में लेके आके फिर यू एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो वो नहीं होगा ना। जैसे हम भी अपने बच्चों को जब हॉस्पिटल से लेके आते हैं बच्चे को, तो फिर हम लोग भी 10 दफे दिन में हाथ धोते हैं, सब करते हैं, तो वैसे ही इसके साथ भी करना है। तो ये वाला रेता डाल दिया, फिर इसके ऊपर मैंने बेविस्टीन का पानी से इसको पूरा तर कर दिया। अगर आप केमिकल में नहीं जाना चाहते, आप ऑर्गेनिक करना चाहते, तो आप हल्दी का पानी बना लीजिए या दालचीनी के पाउडर का पानी बना लीजिए और इसको अच्छी तरह भिगो दिए। अब आपने भिगो दिया, अब ये आपके प्लांट है। अब इसकी हम टर्मिनल कटिंग लेंगे। दीपा, आई होप इट्स ऑल विजिबल। Yes, Miss. It is. अच्छा, ओके। सो टर्मिनल कटिंग किसे बोलते हैं? जो टॉप की आपकी कटिंग होती है। अगर इसी में से एक कोई शूट निकल रहा है तो वो टर्मिनल नहीं होगा, वो शूट कटिंग होगी। वो इतना बढ़िया नहीं फूल देगा जितना ये टर्मिनल कटिंग आपको देगा। तो ये टर्मिनल कटिंग के 3 इंच आप लेकर इसे काट दीजिए। ओके, सो ये आपका एक कटिंग है। अब इसको आप नीचे से इसकी पत्तियां निकाल दीजिए और सिर्फ ऊपर 2 पत्तियां रहने दीजिए। एंड दिस इज योर कटिंग। नाउ इसको मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे कटिंग्स करने हैं मुझे, तो अभी जल्दबाजी में मैं इसको पानी में डाल देती हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी टेक सम मोर। एक और बात बताऊं कि इसको अगर आप सुबह सुबह आप करें, early morning when the sap hasn't risen in your plant, then you can just do this. fingernail से ऐसे तोड़ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें कभी कभी आप जब निकालते टाइम यू कैन डैमेज द टिश्यू, तो वो थोड़ा सा आप देखोगे तो इधर टिश्यू थोड़ा टॉर्न है, while this is a very clean cut. तो either way it doesn't matter. फिर इनको आपने इसमें डाल दिया, ऊपर के सारे पत्ते निकाल के बस ऊपर के बस 2-3 पत्ते रखो और फिर इनको पानी में डाल दिया। ये लिया आपने अपना रूटेक्स पाउडर, रूटेक्स नंबर 1। यू कैन टेक दिस पाउडर। देयर इज अ लिक्विड आल्सो ऑफ रूटेक्स, आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर आपको नहीं करना तो और भी रूटिंग मीडियम्स हैं, ऑर्गेनिक्स भी हैं। I think even दालचीनी पाउडर is also a very good rooting medium. So फिर आप इनको लीजिए, निकालिए पानी में से, and I hope you can see this what I'm doing. Visible. ये डिप किया, अब डिप किया और इसको ये देखा आप इसमें सब चिपक गया। सो ज्यादा भी नहीं हमने देना, हम थोड़ा इसको ऐसे करके झाड़ देंगे। जब आप ज्यादा देते हो तो प्लांट को क्या है, हार्मोन है ना ये, तो ये फीड है उसके लिए, तो वो बड़े आराम से बैठे बैठे ये खाता रहेगा, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। अब जब आप इसको लगाओगे कटिंग, इसको प्रेस करके नहीं दबाना, आप पहले से आप होल्स बनाइए और हमेशा आउटवर्ड्स होल्स बना के फिर इनवर्ड जाएं। सो एक ही तसले में आप कम से कम 200 से 300 कटिंग्स लगा सकते हैं। तो अब आप बाहर की तरफ से लीजिए, थोड़े से एंगल पे डालिए इसको, नॉट एकदम सीधा, थोड़े से एंगल पे डाल के फिर इसको दोनों हाथ से आप दबा दीजिए
और ये दबाना बहुत जरूरी है क्योंकि जो होल आपने बनाया है उसमें एयर नहीं जाना चाहिए. इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द सैंड सो दैट वो पानी आपका पीता रहेगा. हमें अगेन हमने सैंड में इसलिए डाला कि इसमें हमें पानी ज्यादा नहीं होगा, बस जस्ट इनफ मॉइस्चर कि प्लांट आपका अच्छा. और ये एंगल जो है ये बाहर की तरफ होना चाहिए. ये देखिए, ठीक है ना. तो इस तरह से आपने रूटेक्स में डाला, फिर इसको झाड़ा और फिर इसमें लगाया और इस तरह से आप अपनी कटिंग्स बनाएंगे. ये कटिंग्स आपने रख दी. अब इसको आप अगेन इसको लगेंगे 21 दिन रूट करने में. अब हमको क्या करना है, ये 21 दिन इसको रूटिंग के लिए छोड़ देना है. बिल्कुल ही पक्के शेड के नीचे रखिए ताकि कोई भी बारिश आए तो उसमें ना हो, और एकदम शेडेड एरिया में होना चाहिए जहाँ पे धूप ना पड़े. बिकॉज अगेन इट कैन नॉट use the sunlight to transfer moisture from the root system to upstairs. So it does not require sunlight right now. After 21 days, then you will find that you just need to hold your fingers onto this cutting and try to tug it a little. मतलब हल्का सा खिंचाव दीजिए. जब आप हल्के से खिंचाव देंगे तो अगर रूट सिस्टम है उसमें तो आप एक काउंटर पुल फील करेंगे. अगर वो फीलिंग नहीं आई तो इसका मतलब रूट्स अभी नहीं फॉर्म हुए, इसको फिर से दबा के वहीं छोड़ दीजिए. कई वैरायटीज ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रूट सिस्टम फॉर्म करने के लिए. जब रूट्स इसके हो गए, डागा जी तो ये भी कहते थे हमको कि अगर एक ही लंबा रूट भी हो तो भी बहुत बढ़िया है. गुच्छेदार हमको रूट सिस्टम नहीं चाहिए बिकॉज वो ऑलरेडी मेच्योर प्लांट हो जाएगा. सो इसलिए ही सेड एक दो जड़ भी हो तो उनको आराम से आप वंस अगेन हम आराम से उसको कोई चीज से यूं करके और फिर उसको उठा लेंगे ऐसे करके. नॉट कि आप उसको पुल करके निकालें, ठीक है ना. तो ये आपको आराम से उसको निकालना है और उससे पहले आपको अपना पॉट्स को तैयार करना है. अब इसमें पॉट मिक्सचर क्या होगा, जो आप 4 इंची के पॉट में इनको लगाओगे तो ये 4 इंची पॉट में आपको पॉट मिक्सचर क्या होगा. नाउ ये तो आपकी कटिंग्स जो आपने खुद बनाई वो होंगे, लेकिन अब आपने कभी ट्राई नहीं किया, आपके पास गुलदावरी भी नहीं थी या थी भी तो वो अब सब खराब है, यू डोंट नो द नेम्स, नथिंग. So you want to start afresh. So then we will start getting the rooted cuttings in the month of July. So month of July, by the first week, second week, you'll start getting from Calcutta and good varieties. If you are ambitious enough, you can ask them for specific names. And some nurseries will give you. Otherwise, not many of them give it. Otherwise, you have to ask somebody from Calcutta to give you these names. Calcutta वाले सबके पास ये नेम वैरायटी आपको मिल जाती है. तो आप भी जब रूटेड कटिंग लाएंगे वो तो आप लाओगे थम पॉट्स में. थम पॉट्स में जब आप ले आए एकदम से उसको टर्न ऑन नहीं करना. थम पॉट्स में ला के एक हल्का सा जैसे ये तसला बनाया वैसे ही कोई एरिया में आप थोड़ा सा रेत बिछा के पानी उसमें एंटी फंगिसाइड डाल के उसमें दबा के रख दो इनको कुछ दिन. In the meantime, you have to prepare your soil. Before now, you are on the 18th of June, you have plenty of time now. Now you get your good gobar ki khad, get this kind of sand, sterilized sand, get patti ki khad or get vermicompost and get lots of dried leaves. तो अब इसमें जो ये जो 4 इंची के पॉट में आप मिक्सचर डालोगे वो उसमें आप बिल्कुल ही नाम मात्र को गोबर की खाद डालिए. ज्यादातर वो आपका गार्डन सॉइल होगा और उसमें आप रेता डालिए 25%, पत्ती की खाद 25%. ये डाल के आप मिक्सचर बनाओ. तो 4 इंची के पॉट के लिए ये काफी है.
उसमें आपने ये रूटेड कटिंग बिठाई। बट आई ऑलवेज एम्फसाइज, चाहे 4 इंची का पॉट हो चाहे 10 इंची का पॉट हो, आपको भरना, उसको पॉट को भरना भी आना चाहिए। आप पॉट को ऐसे ही नहीं भर सकते, एक टिकरी डाल दी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ सी डाल दी और फिर आपने उसमें मिट्टी भर दी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको उसमें ठीकरियां अच्छी तरह एक पूरा लेयर बना के डालना है। कई दफे मैं ये पॉट भरने का भी एक पूरा लेक्चर देती हूँ, तो वो तो 10 इंची और 12 इंची के पॉट के लिए, आई विल टेल यू दैट लेटर। बट 4 इंची के पॉट में भी आप एक लेयर ऑफ छोटी छोटी ठीकरियां डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट है गमले की ठीकरियां। जो आपके गमले टूटते हैं, कोई चीज आपके गार्डन से फेंकनी नहीं चाहिए, चाहे मिट्टी हो चाहे कुछ हो, आप वापस उसको गार्डन में ही यूज कर लेंगे। तो ये छोटे ठीकरियां जो है, उसका एक लेयर बनाया, उसके ऊपर आपने थोड़े से सूखे पत्ते डाले और उसके ऊपर थोड़ा सा रेता डाला। ये सब हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वी इंश्योर कि कभी भी ओवर वाटर लॉगिंग हो भी तो मेरे रूट्स के आसपास ना हो, वो छन के नीचे चले जाएं और इस वाले एरिया से भी छन के नीचे चले जाएं। तो put a layer of dried leaves and then put a layer of sand on top, then fill it up with your mixture and then आप जगह बना के उसमें अब आप अपना ये कटिंग को लगा दीजिए। अच्छा, इसमें भी आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ, जब 4 इंची का गमला होगा तो ऊपर तक, यहाँ तक आप मिट्टी नहीं भरेंगे। हमेशा 2 सूत 3 सूत मिट्टी नीचे रहनी चाहिए, मतलब उतनी जगह आप छोड़ दीजिए। वो इसलिए कि जब आप पानी डालोगे तो इसके अंदर पानी रह जाएगा। ऊपर तक मिट्टी डालोगे तो ऊपर से छन के पानी चला जाएगा, आप सोचोगे आपने पानी दे दिया है और पानी नहीं जाएगा प्लांट के अंदर। तो वो 2-3 सूत आपको रखना है। तो ये आपने एक कटिंग को रख लिया। सो नाउ से फर्स्ट वीक ऑफ आपका जुलाई हो गया, बिकॉज अभी जो आप कटिंग भी बनाओगे ना 18 से, तो आपको वही 3 हफ्ते तो लगेंगे, 21 डेज लगेगा रूटेड कटिंग करने में। तो बना बनाया कटिंग और आपकी कटिंग आज अगर आप स्टार्ट करोगे तो वही टाइम लगेगा। सो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। देन 4 इंची में नाउ यू अलाउ इट टू ग्रो। नाउ let it grow, and at least for the first 10 days no feeding, nothing. Let it develop the root system in it. While you're doing this, there is one thing I will just show you, that bottle. It's called Rooting Hormone Power. This Rooting Hormone Power. Now this bottle I got from Amazon only. So ये क्या है, इसका अगर आप half not even ढक्कन, half a teaspoon in 1 liter of water and you pour it, it strengthens your roots. Humic acid, the way Mahesh ji has taught us, yeah, Mr. Pant has also taught us how to make our own humic acid in the home, which is so simple. So simple, just with our cow dung, बना हुआ काउ डंग, नॉर्मल काउ डंग जो आप खरीद के लाते हो, 1 fistful of that in 1 liter of काउ यूरिन में आप भिगो के उसको रख दो और फिर 3-4 दिन बाद उसको बस आप छान के उसमें 10 liters water you add. Now you keep that water, that's also humic acid. You can pour 1 whole ढक्कन of that in 1 liter of water into your root system. That way your roots are getting all the nourishment. So then for the next first 10-20 days, you don't need to feed your plant. Thereafter, you must give a weekly feed of liquid manure. Now, whether you do liquid manure of cow dung, whether you do it of neem khali and bone meal, or you put a little bit of sarson ki khali, that choice is yours. But it's always nice to keep feeding your plant. तो ये आपने करा, तो now somewhere around the end of July or first week of August, you will find that these plants, this plant is growing. Now when it's growing,
I'm just cutting this. When it is, this is in a pot, okay? Now, if it grows this much, where it has 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, this is too long. You should just about have 10 to 12 leaves. When you have 10 to 12 leaves, then you can do a soft pinching of removing the top 2 leaves. When you just remove these 2 leaves and do the soft pinching, what happens is from here again fresh branches come out. We are doing this whether it's in the 4 inchi or you have shifted it already into the 6 inchi pot. The point is it should have 10 to 12 leaves, and then you do 2 leaves ka pinching, so you are left with 7 to 8 leaves only. This we do. When do we do this? We do this when we want more than 1 bloom. I'm still talking about the large flowering. We have not come to the jhadi ones. तो large flowering में कभी हम लोगों को 3 flowers चाहिए. देखिए, एक flower तो चलता जाता है. एक फ्लावर में आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है इसको. एक फ्लावर अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी कटिंग आप बनाओ टुवर्ड्स जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, because I want to plant it in the first week of August when I want only 1 bloom. Otherwise, this one will grow very tall and इतना लंबा ग्रो करके फिर एक ब्लूम आएगा. जैसे कई दफे आप शोज में देखते हो, सोनार बंगला लंबा सा जाके ऊपर एक फ्लावर आता है. फिर सोनार बंगला की ट्रेट भी है, उसकी नेचर भी ऐसी है कि वो लंबा जाता है. बट बाकियों में वी डोंट वांट इट टॉल, ग्रोइंग टॉल. सो हम जो एक फ्लावर वाले कटिंग है वो हम बाद में लेते हैं, हम अगस्त में लगाते हैं उसको. बट जो हमको 3 ब्लूम वाले चाहिए तो उनको हमें अभी लगाना है, जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में. तो जब हम ये पिंचिंग करेंगे तो इसमें से आप कई शाखें निकलेंगी. जब ये सारे बहुत सारी शाखें इसकी निकलेंगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, 10 डेज में आ जाएंगी इसकी शाखें. तो वंस अगेन आपको उसमें छांटना पड़ेगा उनमें से कि कौन से वाले. अगर मान लो जो 5 निकल आए, आपको सिर्फ 3 ब्लूम्स चाहिए, तो आपको फिर ऐसे करना होगा. ये इतने सारे ब्रांचेस हैं तो आपको एक आध को निकाल के सिर्फ 3 को रखना है, और 3 को भी इस तरह से रखना है कि दे फॉर्म अ ट्रायंगल. इस तरह से आप, तो चॉइस ऑफ ब्रांचेस इज लाइक दैट कि आप इस तरह से करो कि आपको 3 मिल जाए, और फिर अब आप इसको ग्रो करने दोगे. साइड शूट सारे निकालते जाओगे, शूट्स नॉट लीव्स. जो भी कोई शूट निकल आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए, और बस इन 3 डंडियों को ही चलने देना है. अब आप हो व्हेन यू डू दिस प्रोसेस, और जब आपकी ये चॉइस हो गई 3 शूट्स की, तो अब आप आ जाते हो अगस्त में. अगस्त के मिडिल तक आ जाओगे. तो अगर आप अगस्त के मिडिल तक आ जाते हो तो उस टाइम पे आप इसको 6 इंची से 8 इंची में आपको बदलना होगा. तो as we are going, अब now what is happening, 4 इंची से जब हमने 6 इंची में किया तो अब इसकी पॉट मिक्सचर चेंज होगी. अब इसमें क्या है, एक हिस्सा 6 इंची के, इसमें एक हिस्सा आपके काउडंग, एक हिस्सा पत्ती की खाद, आधा हिस्सा मिट्टी, आधा हिस्सा मिट्टी, आधा हिस्सा इसमें थोड़ा सा चारकोल डाल सकते हैं, और थोड़ा सा रेता. साथ में ही थोड़ा सा 1 टेबलस्पून आप इसमें नीम खली डाल दीजिए, और आधा टेबलस्पून बोन मील, और ये मिक्सचर बना के ये 6 इंची के पॉट में जाएगा. तो आई क्विकली रिपीट अगेन. 1 पार्ट काउडंग, 1 पार्ट पत्ती की खाद, half a part of soil, garden soil, half a part of what did I say, रेता. ठीक है. And then you put a little bit
a fistful of koile ka chura and 1 big tablespoon of neem khali and half a tablespoon of bone meal, and mix it all together and put it in the same manner as I did the first pot. That is ठीकरियां बेस पे, सूखे पत्ते, फिर रेता, फिर उसके ऊपर ये मिक्सचर. और ये मिक्सचर में भी खूब सारी अगर आप लूज पत्ती डालोगे तो आपकी बहुत अच्छी उसमें भुरभुरी सॉइल भी हो जाएगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी खूब बढ़िया हो जाएगा, विच विल हेल्प यू टू मेटाबोलाइज इतना सारा जो खाद आप डालते जा रहे हो अपने पॉट में. तो दैट वे यू फिल अप योर पॉट. सो ये आपकी 6 इंची में हो गई. अब आपने कहा कि अगस्त मिडिल में हम इसको 8 इंची में ट्रांसफर कर देंगे. तो जब हम 8 इंची में, ये अगस्त 3rd वीक में कर सकते हो, 4th वीक में भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ योर प्लांट. आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ रहा है और इसमें रूट सिस्टम खूब ज्यादा हो गई है, तो फिर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. नहीं तो मत छेड़ो. यू कैन डू इट इवन इन एंड ऑफ अगस्त. भर के अब आपने 8 इंची के पॉट में किया. दिस इज इट्स फाइनल रेस्टिंग प्लेस. हम जो लार्ज फ्लावरिंग है उसको 8 इंची से बड़े पॉट में नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें फूल तो आपको मैक्सिमम 3 ले लिया, कहीं कहीं जगहों पे कोई कोई 5 ले लेते हैं. बट वो जब 5 लेते हैं ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ ब्लूम्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो पड़ता है. एक्सपर्ट्स हैं तो वो खूब सारा फीडिंग कर करके और हार्मोन्स दे दे के और बहुत सी चीजें देके उसको बढ़िया रखते हैं. बट स्टिल 3 फ्लावर्स इज द बेस्ट. ठीक है. 8 इंची में अब आपका सिंगल वाला प्लांट जो आपने अगस्त के 1st वीक में डाला था, जिसमें आप सिर्फ एक ब्लूम लेंगे, तो वो भी अब 8 इंची के पॉट में ही आप नहीं, पहले 6 में डालिए. 6 में थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद 8 इंची के पॉट में अब आप अगस्त के एंड में आप उसको ट्रांसफर कर दो. 8 इंची के पॉट का मिक्सचर होगा 1 part cow dung, 1 part of vermicompost, 1 part of पत्ती की खाद, and half a part of रेता and आधे पार्ट का कोयले का चूरा. गार्डन सॉइल? गार्डन सॉइल बहुत ही कम. अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो तो आपको गार्डन सॉइल की जरूरत भी नहीं, तो वेरी ऑफन हम लोग अवॉइड भी कर लेते हैं उसको. अब ये जो सॉइल है आपकी, ये वाटर रिटेन भी करता है और जो एक्सेस पानी है उसको ड्रेन आउट भी करता है. तो सितंबर में जो आपकी बैकलैश होती है ऑफ मॉनसून, वो सबको प्रोटेक्ट कर देता है और वो पानी को रोकने नहीं देता है. तो 8 इंच के पॉट में ये आपका फाइनल रेस्टिंग प्लेस है. अब मैं फीडिंग आपको अलग से बताऊंगी. सो ये आपको चलते रहना है. जब भी आप प्लांट को ट्रांसफर करते हो तो ये ट्राई करिए प्लीज, ये रूटिंग हार्मोन पावर या फिर आप अपना ह्यूमिक एसिड ले लीजिए, वो बना के एक बोतल में रखें. ह्यूमिक एसिड की जो आप अपने आप बनाते हैं विद इस गोबर का, द एडवांटेज ऑफ दैट इज कि आपने एक ढक्कन लिया, निकाल लिया उसमें से, अब वापिस एक ढक्कन पानी उसमें डाल दीजिए, फिर से तैयार हो गया. तो ये अक्षय पात्र है, कभी खत्म नहीं होता. You can keep using it, but maximum for a year you can use it if you keep it in the fridge. So this humic acid should be used with every transplantation. Every time we transfer it, it's good to use it in that. Now, once you have transferred the plant, so 10 दिन आप उसको बहुत ज्यादा वो मत दीजिए, क्योंकि already your soil mixture is there. Before I go any further, I want to tell you, ये soil mixture जो हम कर रहे हैं, इसको पहले से बना के रखना है. ये नहीं कि आप उसको लास्ट मिनट पे बना रहे हो, ताजा ताजा आप बना रहे हो, उसमें आप वो करा तो आपका कोई प्लांट नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा. तो गुलदावरी की जो मिट्टी है, हम बनाते हैं इसको मार्च के महीने से लेके जुलाई तक वो बन के, मतलब वो पड़ा रहता है और वो इतना डिकम्पोज होके उसमें जो एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन हो या एक्सेस मात्रा में हीट जो होता है, जो अनडिकम्पोज्ड जो आपका गोबर की खाद होती है, उसमें हीट का
की मात्रा बहुत होती है, बिकॉज अभी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर. जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो हीट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. सो ऑल दैट शुड कंप्लीट एंड फिनिश ऑफ when you take it and put it in your pot. So हम लोग पहले से बना के रखते हैं. ठीक है, हो सकता है आप लोगों के पास जगह नहीं हो, छत है, balconies है, can't do that much. Then when you have just planted it in the 4-inch pot, start making your soil for the 6-inch pot. Make it, keep it aside. Then when you put 6-inch, quickly make your 8-inch ka material and keep it aside. So you're always ahead and you have allowed, given enough time for your soil to decompose. That is the important factor. You must always keep in mind. Always prepare your pots well in advance. बना के मिट्टी डाल के उनको धूप में छोड़ दीजिए और कटिंग्स आप लाओगे 2 या 3 हफ्ते बाद. तो ऐसे करके आप करोगे तो आपके प्लांट्स को कुछ नहीं होगा. तो नाउ दीपा, how much time do I have? You have another 15-20 minutes. Okay, so quickly now I want to tell about the jhadis. Yes, please. Feeding, I will tell you common for both of them. ठीक है ना? So that will be. अच्छा. Now this is my jhadi. So you can see this jhadi has been started. जो मैंने आपको बोला था शक्कर, अब ये झाड़ी वाला प्लांट है. जब ये जनवरी में इसमें फ्लावर्स सॉर्ट ऑफ ड्राई होने लगते हैं, उसी टाइम पे आप देखोगे नीचे से बहुत सारे उसके भी सक्कर्स निकलते हैं. तो आप उसको ऊपर से जैसे काट दोगे और अलाउ द सक्कर्स टू ग्रो. फिर वही सक्कर्स को जैसे इसमें बताया था वैसे उसको 4 इंची में लिया. अब जब 4 इंची में आप रखोगे इसको, 10 दिन के बाद ही इसमें ट्रेनिंग शुरू करना है. वो क्या है कि पिंचिंग करना है आपको, और पिंचिंग करोगे तो छोटी सी झाड़ी बन जाएगी. फिर आपने उसको 6 इंची में डाला और फिर इन द मीन टाइम फीडिंग चल रही है. फीडिंग तो कंटिन्यूअसली एवरी वीक आपकी फीडिंग चलनी है, और वो है लिक्विड मैन्योर, या फिर आप वो दे सकते हो, कोई सा भी लिक्विड मैन्योर दे सकते हो. अगर आप केमिकल में यूज करना चाहते हो तो आप एनपीके का स्प्रे दे सकते हो. ये आपकी फीडिंग कंटिन्यूअसली चलेगी द होल ऑफ जुलाई. जुलाई में अभी गर्म है, बहुत गर्मी है, अगस्त में गर्मी होगी. तो हम जो सरसों की खली की मात्रा है ना, लिक्विड मैन्योर जो है, लिक्विड मैन्योर को हम पहले थोड़ा सा सरसों की खली डालेंगे और उसका जो मिश्रण होगा वो बहुत डाइल्यूट करेंगे. सो जो हम फीडिंग शुरू कर रहे हैं आपकी जुलाई ऑनवर्ड, वो फीडिंग जो है वो बहुत लाइट, बिल्कुल ही हल्का पानी के बराबर दिखना चाहिए. वो आपने हर हफ्ते दे दिया फीडिंग. फिर आप उसको हल्का, अब अगस्त के महीने में आके थोड़ा उसको गाढ़ा कर दीजिए, और उस टाइम पे सरसों की खली इंट्रोड्यूस करना बेटर होता है, क्योंकि सरसों की खली गर्म होता है. तो वो जुलाई में ना करके हम अगस्त में करते हैं. अब अगस्त में बारिशें भी खूब हो रही हैं, तो अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी दोगे वो भी लीच होता जाएगा. सो फीडिंग की आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा थ्रू आउट. तो हफ्ते में आपने एक दफे ये दिया लिक्विड मैन्योर, और फिर उसके तीसरे दिन आप उसमें बायोवीटा दे दिए. वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर अप कर लेगा. तो इस तरह से आपका हर हफ्ते कोई ना कोई फीड जा रहा है, ये भी, और बीच बीच में बायोवीटा भी जा रहा है. तो वो आप बायोवीटा के दाने डाल दीजिए, नहीं तो स्प्रे करना चाहे स्प्रे कर सकते हैं. तो अब आपने इसको 4 से 6 इंची में किया, बट पिंचिंग आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी, फीडिंग आपकी कंटिन्यूअस चलती. आई विल गिव यू एन आइडिया ऑल्सो ऑफ हाउ टू पिंच इट. अब आप देखें, इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा बाहर को निकला हुआ है ना. हमेशा जो पिंचिंग हम करते हैं, हम नीचे की पोर्शन तो हार्ड प्रूनिंग करते हैं. हार्ड प्रूनिंग का क्या मतलब है? हम इसमें कम से कम इतने सारे पत्ते निकाल देते हैं. ये हार्ड प्रूनिंग हुई.
फिर इस लेवल पे जब हम आते हैं तो इसमें हम मीडियम हार्ड करते हैं। उसका मतलब है हम 4, यहाँ तो हमने कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्तियां निकाली। इसमें हम निकाल रहे हैं ये 1 2 3 4 5, छठा भी होगा कहीं आ रहा है उसमें, तो अबाउट 4 से 5 पत्तियां हम निकालते हैं मीडियम। सो ये आपका हार्ड प्रूनिंग होगा, या मीडियम प्रूनिंग होगा, ये सॉफ्ट होगा। नहीं तो ये जो है ना डोम शेप में नहीं आएगा, और ये हमें डोम शेप चाहिए। अभी मेरे वाले में भी प्रॉब्लम है, यहाँ फ्लैट हो रहा है, तो इसलिए अब आई विल अलाउ दिस पोर्शन टू ग्रो। इसको हल्का पिंचिंग करूंगी और इसको ज्यादा पिंचिंग करूंगी, तो ये करते करते ये अब बढ़ता जाएगा। ये आपका सितंबर में अगस्त तक तो ये 8 इंची में आ गया, जैसे वो आ गया था। अब ये सितंबर के 15 तारीख को 10 इंची के 12 इंची के पॉट में जाएगा। जब तक ये 12 इंची में नहीं जाएगा तो इसकी झाड़ी उतनी बड़ी नहीं होगी। तो सितंबर में इसको 12 इंची में करके फाइनल, उसमें अब हमने उसके पिंचिंग भी चलते रहेगा और फीडिंग भी इसकी चलती रहेगी। ये आपका जाके ना नवंबर एंड बल्कि दिसंबर के शुरू में फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए ये टेक्निक करना झाड़ी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और फीडिंग करना है वंस अ मंथ। आप इस पे ध्यान दीजिए कि कोई कीड़ा नहीं बैठा हो, क्योंकि गुलदावरी में फंगस बैठता है और कीड़ा बैठता है। तो फंगस की बहुत साइंस है, आपको पता है, पत्ते आपके नीचे वाले, खासकर नीचे वाले पत्ते काले होने लग जाते हैं, तो आपको पता है फंगस है। तो आप वैसे ही प्रिवेंटिव इसमें एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड हर 15-20 दिन में आप इसमें स्प्रे करिए। देखा गया है केमिकल अगर आप फंगिसाइड देते हो, जैसे आपका रीडोमील है, रीडोमील बहुत अच्छा है, वो दैट आल्सो वर्क्स। और अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो छाछ का पानी बना के उसको आप स्प्रे करते रहो। छाछ के पानी में तो कोई खतरा नहीं है, आप जब चाहो उसको स्प्रे कर दो, हर हफ्ते कर दो, 10 दिन में कर दो, तो यू विल सी दैट। Mild cow urine is also a very good insecticide. That means अगर आपने 1 टेबलस्पून काउ यूरिन लिया 1 लीटर पानी में भी, आधा लीटर पानी में, और उसको स्प्रे करते रहोगे, ऐसा ये सब चीजें ऑर्गेनिक जो है, इनको आप प्रिवेंटिव मान के चलोगे तो आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरह से टैकल हो जाते हैं आपके डिजीजेस सारे इसमें। तो ये आप देते रहें। और मैंने अभी अगस्त तक ही बताया है, क्योंकि मैंने दीपा को कहा था इतना कुछ है बताने को कि सितंबर का मैं बाद में बताऊंगी कि बडिंग जब आएगी, वो अक्टूबर में बडिंग आएगी। क्यों आएगा, काहे को आएगा, कौन से फैक्टर्स हैं दैट डिटरमिन की बडिंग हो आपके उसमें। क्योंकि कई आपके गुलदावरी ब्लाइंड भी हो जाते हैं जब हम ज्यादा न्यूट्रिशन उसको देते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन भारी कर देते हैं, तो ऊपर इसके पत्ते पत्ते होके वो ब्लाइंड हो जाता है, उसमें फूल नहीं आता है। बस एक दफे अगस्त के मंथ में जब आप देखोगे बहुत अच्छी बारिशें हो रही है, तो एक मैग्नीशियम सल्फेट का डोज देना जरूरी है फॉर योर प्लांट। और जब कभी भी आप देखोगे कि पत्ते आपके ना बड़े लाइफलेस से हो रहे हैं, जरा हल्का ग्रीन हो गए, तो मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए 1 डोज। और फिर बाद में हम लोग सितंबर में 1 डोज फेरस सल्फेट का भी देते हैं। फेरस सल्फेट में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई भी उसका दाना भी, एक ड्रॉप भी पत्तों पे ना गिरे और सिर्फ सॉइल के अंदर चला जाए। तो वो हम सितंबर के we'll do that in August, because it will get very confusing to us. Yeah, so अगस्त में हम सितंबर और अक्टूबर की बात करें। Yeah, because then you'll be telling us how to stake also the plants. You see, ultimately you need to वही बहुत है, डिस बडिंग है, डिस शूटिंग है, अभी बहुत कुछ है। राइट। आप एक दफा जो 8 इंच, सॉरी आई एम बटिंग इन बार-बार, बट 8 इंच का जो है मिक्सचर, पॉट मिक्सचर एक दफा फिर रिपीट कर देंगे, बिकॉज आई थिंक इट हैज बीन मिस्ड आउट अ बिट। अच्छा, तो 8 इंच तो आपके लार्ज फ्लावरिंग के लिए है, फाइनल रेस्टिंग प्लेस, और 12 इंच है आपके झाड़ी वाले के लिए, है ना। तो दोनों का मिक्सचर इज द सेम। तो वो है एक हिस्सा आपके काउडंग
1 हिस्सा पत्ती की खाद, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, आधा हिस्सा रेता। क्या था, जमुना रेता, आधा हिस्सा रेता, आधा हिस्सा कोयले का चूरा। हाँ जी। ठीक है, और उसी में अब आपको एक मुट्ठी भर नीम खली और 15 to 20 grams ऑफ बोन मील, ये मिक्सचर है आपका। राइट। तो ये 8 इंची ऑनवर्ड्स, नाउ दिस विल बी द मिक्सचर। अगर आप 10 इंची में भी ट्रांसफर करते हैं ना झाड़ी को, तो भी यही मिक्सचर होगा। और फिर 10 से 12 इंची वही मिक्सचर होगा आपका। आई एम नॉट रिकमेंडिंग ओखला एट ऑल। अब हम ओखला नहीं डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। There are many people who अभी भी डालते हैं, वो उसको काउडंग के साथ मिक्स करके करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपका गुलदावरी है, इसको फीडिंग हमेशा चाहिए, और फास्ट फीडिंग। ओखला जो है वो स्पर्ट देता है, बट आजकल उसमें इतना कुछ और है, और केमिकल्स हैं, तो वी डोंट, आई डोंट यूज इट। हाँ श्यामा जी, आपने इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया that there are not too many questions in the chat. एक क्वेश्चन था जब आप कह रही थी ना कि धूप में आप छोड़ सकते हैं, तो then there somebody who's asked कि मई जून में भी बाहर गर्मी में छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सिर्फ आपको टेम्परेचर देखना है, 40 से ऊपर हो गया तो आप 12 से 4 प्रोटेक्शन दीजिए, बट 4 बजे बिल्कुल निकाल दीजिए। ओके। If there are any questions, please you can put in the chat. We can take them up. But आपने इतने क्लैरिटी से समझाया, I don't think we are going to have that many questions. या तो समझ में आ गया, या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे मेंबर्स की समझ तो है जरूर है मुझसे। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। देखिए मंजू जो कभी नहीं क्रिसैंथेमम उगाती, इस दफा जरूर उगाई। आई होप टू। धूप भेज दीजिए मेरे घर, क्योंकि धूप नहीं है मेरे घर पे। हाँ, छत पे भी नहीं आती है मंजू, छत पे भी नहीं है, पर उतना 2 फ्लोर्स उतना जाना और आना पॉसिबल नहीं होता है रोज का। तो माली है, बिकॉज मैनी even in Japan, the best chrysanthemums are grown on the terrace. And why? Because they have a lot of wind. So every time the wind goes and comes and goes, it disturbs the guldavari. So you know what they do in some places, जैसे पुराने घरों में वो पंखा नहीं होता था जो बाहर बैठ के बीबी वो खींचती रहती, वैसे वाला पंखा लगा के they keep disturbing the guldavari. Okay. Wow, to disturb the root system. Because that's why we do so much of repotting. बार बार उसको निकालते हैं, फिर उसको प्लांट करते हैं ना, तो that is the meaning. अच्छा श्यामा जी, एक क्वेश्चन है। पहली बात तो महेश मिश्रा जी आपको नमस्ते कह रहे हैं। ओ नमस्ते। अरे महेश मिश्रा जी के लेक्चर के सामने मैं क्या दे रही हूँ लेक्चर। देखिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझा लेते हैं। एक मानसी पूछ रही है, हाउ टू आइडेंटिफाई द लार्ज फ्लावर शूट्स एंड स्मॉल फ्लावर शूट्स व्हेन बाइंग देम। अरे when you're buying them, you won't get shoots, you will get rooted cuttings. What he meant to say is the variety, how to ask for badi variety and choti variety. You see what happens is in most of the local nurseries, it's like as you said, color hai, and most of the time they don't know whether it's large flowering or a bush flowering. Is there any way that we can do it? Yeah, can you recommend anybody where we can get confirmed variety? वो दिल्ली में तो है, मुझे पता है, मस्जिद वगैरह। पिछले साल इनके पास बहुत अच्छे थे बालाजी के यहाँ, जो कापाशेड़ा में, वो बहुत अच्छे उनके क्रिसैंथेमम्स थे। आई गेट माइन फ्रॉम कैलकाटा ओनली। मोहन स्वरूप जी भी मंगवा के देते थे एक टाइम पे, बड़े अच्छे गुलदावरी। He is unable to do it. हाँ नहीं, बट कोई अगर वो नाम बता दें तो you people can directly get in touch. नमस्कार श्यामा जी, can I ask one question? जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा महेश जी बता रहे हैं that there are varieties available with the names also available, so we'll do some recce and then get back to the members. एक महेश जी शायद वो
कहाँ पे, रविंद्र नगर या काका नगर में कहीं एक दुकान है, उसके पास जो बहुत अच्छा है मिलता गोल्फ क्लब के सामने जो है। है, हाँ, गोल्फ क्लब हाँ, के सामने, हाँ, वो एग्जैक्टली, गार्डन ग्लो है हाँ वो। हाँ, वो आई भी आस्क है। हिम अगर वो मंगा दे तो, बिकॉज 2 साल और पहले उसने नहीं मंगाया था। आई आस्क अच्छा, हिम। हाँ जी, and from Calcutta I get it from Mr. Shekhar Datta, and he gives named varieties only. ओके, हाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट but दिस टाइम। आप लोग शो करिए नेम वैरायटी so that members can see and identify them, and then we'll yes, start. Maybe we can then, if there is enough interest, we can ask Shekhar Datta and all to send a carton. You know, we take a pre-order and send it, yes, something like yes, that. We can हाँ, work that out. So yes. any more questions? एक ना जी कोई है एक नया वो question? सुमन कुछ पूछ रही थी ना, सुमन नाम आया था। नहीं, सुमन जी ने तो नहीं कुछ पूछा, उन्होंने तो सिर्फ नमस्ते करी। नहीं, कुछ पूछना चाह रही अच्छा, थी। हाँ, नहीं, हाँ, एक सोनाली जी ने पूछा हाउ टू सेव द प्लांट्स। वैसे एक बार और पूछना था श्यामा जी, जैसे आपने बताया कि मिक्सचर तो हो गया पोरस, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि बारिश बहुत तेज हो जाती है, पानी लगातार हाँ, पड़ता रहता है, तो इज देयर एनी वे, देखिए हर जना तो ईंटों के ऊपर रख नहीं सकता फॉर द हाँ, वाटर हाँ, टू गो हाँ, थ्रू, और गार्डन भी सैचुरेट हो जाता है, लैंड भी सैचुरेट हो बिल्कुल, जाता है, तो बिल्कुल, इज देयर बिल्कुल। एनी वे वी कैन सेव द पॉट्स एट दैट टाइम? That is the only way. I mean, we on the farm, we put a plastic cover so that बारिश का पानी ना जाए, because हमारे पास गमले भी तो 1000 में है ना, 2-3 हाँ जी, हजार बनाते, बट अदरवाइज अगर आपके छोटे हैं तो आप उसको टिल्ट करके रखिए। ओके, टिल्ट करके रखेंगे तो बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा, जो भी है वो निकल के बाहर ही निकल जाता है। ठीक। तो with the help of some support. Mansi, the cuttings generally are for 10 to 15 rupees, depending upon where you are buying it from. आपके Yeah. sector 18 nursery में they charge 10 rupees and they charge 15 rupees depending upon the nursery you go to, not more than that. बाकी लार्ज फ्लावरिंग का पत्ता बड़ा होता है, एंड उसकी नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग। जैसे लक्ष्मी जी पत्ते को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। कुछ कुछ तो अब हम लोगों ने भी सीख लिया है, बट लार्ज फ्लावरिंग की हमेशा पत्ता थोड़ा बड़ा सा लगता है, और उसकी कर्व्स जो है ना, जो कट्स हैं, वो भी डिस्टेंस पे होती हैं। while in this thing in a smaller, जैसे ये छोटा झाड़ी वाला है आपको जो दिखाया था मैंने, उसकी पत्तियों का कट भी बहुत पास पास होता है। there are lots of cuts and they are very close by, and leaves are smaller. That is The about the way only we can I and the mean spider one has generally got, spider one has more no, serration, you know, like that हाँ, way. सेडेशंस हैं, थोड़ा सा उसमें कलर चेंज भी डिपेंडिंग ऑन द डीपनेस ऑफ द कलर होता है, थोड़ा बहुत कलर के उसमें, बट अदरवाइज इट्स अ स्पेशलाइज्ड थिंग टू नो द वैरायटी थ्रू द लीफ। बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, श्यामा ये तो जी, इला बिल्कुल जी भी नमस्ते आपको नमस्ते करेंगे। कह रही है। ईला जी नमस्कार। आई थिंक वो अपने मामी, नेक्स्ट नमस्कार इला जी। उस अगले सेशन के लिए चले गए। नमस्कार नमस्कार, हमने सोचा कि ये लगे। म्यूट कर देती हैं सबको, इसलिए हमने ओपन करने की कोशिश ही नहीं की। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्यामा जी। अरे नॉट एट ऑल ईला जी, थैंक यू। एक्सीलेंस है, टॉक दी आपने श्यामा जी, रियली आई एम सो इम्प्रेस। महेश मिश्रा जी को तो हमने सुना था बहुत बार, पर क्रिजांथेमम्स में आपको पहली बार सुना है, and so अच्छा, meticulously and well explained. Hats off. Thank you so थैंक very यू। much. आई फील एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ महेश जी, वो इतना बढ़िया बताते हैं सब कुछ। तो कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो महेश जी चैट में डाल दीजिए प्लीज। श्यामा जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी, आपके सामने तो मतलब नहीं, कमाल है, कमाल है। यू आर द मास्टर। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। नहीं, वो नहीं, बट कोई पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज फिल कर दीजिए गैप्स। नहीं, आपने कंप्लीट कवर कर लिया, ऐसा कुछ रहा नहीं है। अभी हमने महेश जी सितंबर अक्टूबर का बाद में बताएंगे, बिकॉज देयर इज टू मच टू टेल। एग्जैक्टली अभी टाइम नहीं है, लोग फिर दिमाग से निकल जाएगा, आगे का स्टेप ले नहीं पाएंगे। तो ये भी अभी यहीं तक का बताना ठीक रहता है।
हाँ, जी। और बस ये जो लोगों की क्वेरी है कि अवेलेबिलिटी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर हाँ। दूं, इस साल क्रिजेंथेमम की अवेलेबिलिटी अबुंडेंस में होगी। इस बार क्रिजेंथेमम्स के जितने भी ग्रोवर्स हैं उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो दिल्ली में वाह। फ्लड आएगा क्रिजेंथेमम की कटिंग और सैपलिंग्स का, तो नथिंग टू वरी, आपको हर अच्छा जगह अच्छा। नेम्ड वैरायटी मिलेगी। हाँ, इस बार ओह। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है क्रिजेंथेमम का। ओ वेरी गुड वेरी गुड। नेम्ड हाँ, वैरायटीज मिल जाए तो बहुत good। नेम्ड वैरायटी मिलेंगी और अच्छी मिलेंगी, जैसे पिछले 2 साल में अवेलेबल नहीं था, इस हाँ बार हाँ। बहुत अच्छा बना है, देहरादून, कलकत्ता, बनारस, पुणे, सब जगह। और वो अरे वाह। 5 तारीख के बाद दिल्ली में हर नर्सरी पे अवेलेबल होगा। बस जो भी लेना अच्छा। चाहें नेम्ड वैरायटी सेलेक्ट करके लें, जैसा लें, बिल्कुल। रैंडमली पिक ना करें, बस यही हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ। श्यामा जी, ये प्लीज इस करिए। मामले में मैं रेकमेंड यू कि आपने जो नाम बताए थे, अगर आप हाँ। ये शेयर कर देंगी तो वील पुट इन द ग्रुप। एंड ऑल्सो ठीक यू है। नो व्हाट आई डिड वाज कि जो गार्डन कंपटीशन में इस दफा जिन्होंने पार्ट लिया था, आई शेयर द लिंक विद देम ऑल्सो, so that we can अच्छा। share it with them in case they are interested. You know, once the movement kick starts, then Yes it will yes catch up. yes Wali yes baat hai. As we are trying to yes। start the whole thing, so more the मैं merrier. वही कह रही थी, जो आपके इतने सारे कॉर्पोरेट्स ने भी पार्ट लिया ना, उनको जी। कहिए वो लोग ग्रो करते हैं, मुझे पता है दे वुड ग्रो, बिकॉज जी। दिस इज वन फ्लावर। एलजी तो करता ही करता है, वो तो लक्ष्मी जी की वजह LG से तो इस होता ही है। बार श्यामा नहीं। जी इस बार LG नहीं कर रहा है, तो बोल अच्छा। रहे थे कि उन्होंने इतनी ज्यादा लाइट्स लगा दी हैं तो उनकी फ्लावरिंग ओ जाके नहीं होगी जनवरी या मे फ्लावर। बी फेब में भी हो। बोल दिए पॉसिबल है कि फ्लावर शो में क्रिजांथेमम आ जाए उनके, तो उनका तो नहीं आ रहा ओ है। बट द बडिंग प्लस नहीं पॉइंट होती इज है ना, दिस, लाइट के लिए, डे लाइट बडिंग के इट्स चक्कर। हाँ, या बट द यू प्लस नीड पॉइंट दैट। इज दिस कि उन्होंने यो कहा कि माइक्रोफोन एसके ले सोमानी इस बार शायद आएंगे, तो वो नहीं कोशिश कर रहे नहीं, हैं, बोलते हैं अगर उनका आ गया ना अरे एग्जिबिट ये तो इट विल बी एन ये इंटरनेशनल शो टाइप का हो जाएगा आपका पूरा एरिया। सोमानी जी। हाँ, एसके अरे सोमानी। वाह, ये तो हाँ बहुत बड़ी बात हो हाँ जाएगी हाँ, अगर तो सोमानी जी बोले ले कि आए। मैं, हाँ लवली, बोले फिर तो वेरी नाइस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। भर जाएगा पूरा। तो वाओ वेरी आपका नाइस। नाम उसके बाद में था कि श्यामा जी की भी एक्सोटिक वैरायटीज आ जाएंगी, तो बस हमारा शो कंप्लीट हो जाएगा फिर तो। नहीं नहीं, वो तो अब पता नहीं कहाँ है, ये सारे एग्जॉटिक वैरायटीज तो गायब हो गई। चलिए, we have वही। time, we'll work on it. Your eternity, या eternal peace, those वो are so. इटर्नल पीस मेरे यहाँ से ही गायब हो गया, बट लक्ष्मी जी हैज प्रॉमिस्ड कि कहीं से वो मंगवा देंगे। And the golden one which went with it, या the variety, या yeah, that या those या were beautiful. was They were beautiful। just exotic. Yeah. हाँ चलिए, वही। श्यामा जी, thank you so very much. महेश जी, आपका वेलकम, next session थैंक का टाइम हो गया, चलिए मिलते हैं आपको। ओके जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार महेश जी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Bye, Ila ji, namaste. Thank- Thank you everybody for thank you। joining in. Please join in Thank again in you। October, in August. Yes। Shama ji, your certificate, sorry. Thank you, Vivek, for reminding me. Vivek, thank you so much. Oh, thank you. What am I supposed to do? How do I get it? I We'll just have send to it to you. download it. We'll send it to Please। you. You can print it. We are saving on Okay। printing. हाँ, Okay, नहीं ji. नहीं, we have to make Okay, it paperless। Yeah. Yeah. Okay, thank you। so Bye much. bye। Thank you, Bye Vivek. bye। Bye, Thank you. everybody. Thank you. Thank you, everyone.